72 برس قبل اس قوم نے بر صغیر ہند کے اندر ایک لازوال جدوجہد کی تھی۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس پاکستان کے حصول کی جدوجہد میں اپنی جانوں کو کھپایا تھا۔ یہ ملک محض چند نعروں کی بنیاد پہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ خون کی ندیاں بہا کر یہ پاکستان مارد وجود میں آیا ہے۔ اس پاکستان کی بنیادوں میں 5 لاکھ شہیدوں اور 1.25 لاکھ بچوں کو قربانوں پہ پرویا گیا، اور ہزاروں ماؤں اور بہنوں کی عصمت دریاں ہوئی، مگر یہ خون کے دریا عبور کرتے ہوئے اس خطہ زمین تک پہنچے۔ پاکستان کی جد و جہد 2 قومی نظریے کی بنیاد پر تھی۔ 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ ہمارے اسلاف نے، قائد اعظم اور علامہ اقبال نے قوم کی رہنمائی کی اور قوم کو بتایا کہ بر صغیر کے اندر 2 قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اکثریت اور ایک مسلم اکثریت ہے۔ دونوں کی تہذیبیں جدا ہیں، دونوں کی ثقافتیں جدا ہیں، دونوں کی زندگی کے طریقے گزارنے کے جدا جدا ہیں۔ اس لیے یہ دونوں قومیں بر صغیر ہند کے اندر اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ لہذا مسلمانوں کو ایک علیحدہ خطہ زمین چاہیے کہ جس خطہ زمین کے اندر وہ اپنے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ اس 2 قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانان ہند نے کونے کونے سے آوازیں بلند کرنا شروع کی، اور اس کی بنیاد یہ بنایا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور سی پی اور یو پی کے لوگ کہ جنہوں نے اس پاکستان میں نہیں آنا تھا، وہ جانتے تھے کہ ہمارا حصہ ہندوستان میں رہے گا، لیکن انہوں نے بھی اس جدوجہد میں حصہ لیا، اس لیے کہ پاکستان کسی سرحد کا نام نہیں تھا۔ پاکستان کی نظریاتی سرحدیں ہیں، اور نظریاتی سرحدوں کو کبھی بھی جغرافیائی سرحدوں کے اندر مقید نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے پاکستان کی بنیاد ایک نظریہ تھا، پاکستان کی بنیاد ایک نسب العین ہے، اور وہ نسب العین اور نظریہ یہی ہے کہ یہ خطہ زمین ایک ایسا خطہ زمین کہ جہاں اللہ کے دین کی حکمرانی ہوگی، جہاں محمد کی شریعت نافذ ہوگی۔ محض مفادات کے حصول کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کی قربانیاں نہیں دی تھی، انہوں نے خون کی ندیاں عبور نہیں کی تھی۔ ہماری ماؤں اور بہنوں نے محض اس زمین کے ٹکڑے کے لیے اپنی عصمتیں قربان نہیں کی تھی۔ ان کے سامنے ایک مقصد تھا، ان کے سامنے ایک نظریہ تھا، اور وہ نظریہ اور نسب العین یہی تھا کہ ایک ایسا خطہ زمین جہاں اللہ کی حکمرانی ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہو۔ لیکن 74 برسوں میں اس ملک کے اوپر سرمایہ داروں اور جاگیرداروں نے قبضہ کیا ہے۔ یہاں کے وڈیروں، یہاں کے چودھریوں اور یہاں کے خوانین نے اس قوم کو اپنا غلام بنایا۔ چٹی چمڑی کے انگریز سے تو ہمیں نجات مل گئی، لیکن کالی چمڑی والا ہمارے سروں پر مسلط ہے، اور آج بھی وہ خواب ہمارا شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا ہے جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس خواب کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح بنے تھے، جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے ہجرت کر کے اس پاکستان کی سرزمین پر دریا خون کے عبور کر کے قدم رکھا تھا۔ 74 برسوں سے یہ سرزمین اپنے اس خواب کی متلاشی ہے، اپنے اس تعبیر کے لیے متلاشی ہے۔ اس امت مسلمہ، اس پاکستان کے لوگوں کو جس نظریے اور نسب العین کی بنیاد پر یہ ملک دیا گیا تھا، وہ نظریہ اور نسب العین ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ آج یہاں پر وڈیرے اور جاگیردار ہمارے سروں پر مسلط ہے، یہاں غربت ہے، یہاں افلاس ہے، یہاں ظلم ہے، یہاں ناانصافی ہے۔ ہمارے لوگوں کو جس مقصد کے لیے یہاں لایا گیا تھا، وہ مقصد ابھی بھی پورا نہیں ہوا ہے۔ اس مقصد کے حصول کی جدوجہد ایک نئی جدوجہد کے متقاضی ہے، ایک نئے سلسلے کا متقاضی ہے۔ اس لیے کہ یہ پاکستان جن بنیادوں کو حاصل کیا تھا، جب تک وہ بنیادیں اس پاکستان کو میسر نہیں آئیں گی، اس وقت تک یہ پاکستان مضبوط اور مستحکم نہیں ہو سکتا۔
हर हुक्मरान आता है, अपने मफादात की भेंट इस मुल्क को चढ़ाता है। 76 वर्षों से कभी एक पार्टी आती है और दूसरी पार्टी उसको बदल देती है, और वो सारे चोर और चक्के फिर अगली हुक्मरान पार्टी में शामिल हो जाते हैं। वो जाती है तो ये चोर, डाकू और लुटेरे एक नई पार्टी तश्कील करते हैं। वो चेहरे बदल बदल कर इस मुल्क पर मसल्लत होते हैं, इस मुल्क को लूटते हैं, इस मुल्क को इसके नजरिए से दूर करते हैं। और आज वो सारे चोर, डाकू और लुटेरे हमारे इस नजरिए के कातिल हैं, हमारे इस नस्ल के कातिल हैं। और यही वजह है कि ये सारे गैर मुल्कियों के रातबखोर बनकर इस पाकिस्तान की नजरियाती बुनियादों को ही खोखला नहीं कर रहे, बल्कि इसकी जुग्राफियाई सरहदों के भी कातिल हैं। इन्होंने आज से कई वर्ष कबल 1971 के अंदर हमारे एक बाजू को काटा, इन्हीं साजिशों के जरिए से काटा। और मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान जो दो हिस्से थे, एक हिस्से को इन्होंने मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर वो हिंदुस्तान के हवाले कर दिया। और आज वो मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से मौजूद है कि जहां पर उस मुक्ति बाहिनी और हिंदुओं ने साजिशों के जरिए से हमारे इन सारे लोगों के जरिए इस सारे काम की तकमील की थी। यही सारे वडेरे, यही सारे जागीरदार, यही सारे लोग उनके अल्लाहकार बनकर इस मुल्क को दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में तकसीम करने के मुजरिम हैं, इसके जिम्मेदार हैं। और फिर आज इस पूरे पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, बैरूनी दुनिया साजिशें कर रही है, और हमारे अंदर के चोर, डाकू और लुटेरे उनके आलाकार बनकर इस कौम के अंदर तफरीक पैदा कर रहे हैं। कहीं इस कौम को वो जबान की बुनियाद पे तकसीम करते हैं, कहीं इस कौम को वो रंग और नस्ल की बुनियाद पे तकसीम करते हैं, कहीं इस कौम को फिरके और मसलक की बुनियाद पे तकसीम करते हैं। लेकिन हमारी बुनियाद तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। और इस रियासत की बुनियाद भी पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह है। अल्लाह की वहदानियत को कायम करना, अल्लाह के कानून को इस मुल्क के अंदर नाफिज करना, ये लोगों हमारे ऊपर कर्ज है, हमारे इस्लाफ का हमारे ऊपर कर्ज है, हमारे नबी का हमारे ऊपर कर्ज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद अब किसी नबी को नहीं आना है, मेरी उम्मत इस दीन की मुहाफिज बनकर नबियों का फरीजा सर अंजाम देगी। और नबी आके क्या करता रहा है? नबी आके इस दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन को कायम करता रहा है। अल्लाह के दीन की हुक्मरानी के लिए जत्थे और गिरोह बनाकर काफरू, जालिमू, जाबरू, फास्कू के खिलाफ जहाद करता रहा है। जहाद के जरिए से ही ये दीन दुनिया के अंदर फैला है, और जहाद ही जिंदगानी है। ये जिंदगानी जब तक उम्मत ने अपनाई, उस वक्त तक उम्मत का दुनिया के अंदर अरूज हासिल रहा। आज कश्मीर हमारे 1948 से हिंदुस्तान के कब्जे के अंदर मौजूद है। हम मुज़ाकरात करते हैं, हम करारदादे पेश करते हैं, लेकिन वो कश्मीर तो आजाद नहीं हो सका, बल्कि उन्होंने तो अब उसको अपनी रियासत का हिस्सा बना दिया है। लेकिन अगर कोई मुल्क आजाद करना चाहता है तो अफगानिस्तान के अंदर कोई मुज़ाकरात उन्होंने नहीं किए हैं। अफगानिस्तान के अंदर दुनिया की बदतरीन कौमें जो उस पर मुसल्लत थी, दुनिया की 18 रियासतें, पूरी एटमी कुव्वतें उस अफगानिस्तान के ऊपर मौजूद थी, जदीद असले से लैस होकर उस अफगानिस्तान के ऊपर मौजूद थी। लेकिन अफगान कौम ने जज्बा जहाद और शौक शहादत से सरशार होकर उनके तमाम एटमी असासों को बर्बाद कर दिया। और रात के अंधेरे में अमेरिका दुब दबा कर वहां से भागा है, और आज वहां पर भीख मांगते हुए पूरी दुनिया उन अफगान मुजाहिदीन के सामने खड़ी है। अफगान मुजाहिदीन ने दुनिया को बता दिया है कि कमजोरों के लिए दुनिया में रहने की जगह नहीं। अगर तुम इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, अरूज चाहते हो, तो वो रास्ता जहाद का रास्ता है। जहाद ही असलन कौम की और उम्मत की बुलंदी का रास्ता है। अफगानिस्तान के अंदर अगर आजादी मैसर आ रही है तो जहाद से मैसर आ रही है। और इस पाकिस्तान के अंदर भी अगर हमें इस पाकिस्तान के वजूद को दुनिया से बनवाना है, इस पाकिस्तान के नजरिए को दुनिया से बनवाना है, एक ही रास्ता है कि कौम सरों पर कफन बांध ले, जज्बा जहाद और शौक शहादत से सरशार हो जाए, और फिर इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को दुनिया के अंदर वकार मिलेगा और हम अपने नस्ब अलैन से आशना होकर इस मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नाफिज करेंगे। और यही उम्मत की जिंदगी है। और उम्मत अगर अपनी जिंदगी से पीछे हटती है तो जिल्लत और रसवाई जिस तरह आप दुनिया के अंदर मुकद्दर बन चुकी है, इसी तरह फिर पाकिस्तान को भी ये नहीं बचा सकते। अगर हमें पाकिस्तान को बचाना है, अगर पाकिस्तान को बनाना है, इसे मजबूत और मुस्तहकम करना है, तो फिर हमें जज्बा जहाद, शौक शहादत से सच्चार होना पड़ेगा। और पाकिस्तान जिस बुनियाद पे कायम हुआ है, दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर और ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर यह कायम हुआ है, उसी बुनियादों को हमें मुस्तहकम करना होगा। और आज के यौम आज़ादी पर हमें तजदीद अहद करना होगा कि ये मुल्क हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां देकर हमारी इज्जत बाप बहनों में अपनी असमतें कुर्बान कर कर हमें एक अमानत दी थी। आज हम उस अमानत के अमीन हैं। हम आज अहद करते हैं कि हम इस मुल्क की नजरियाती सरहदों की हिफाजत करेंगे, इसके जुग्राफिया की हिफाजत करेंगे और दुनिया की जितनी ताकतें हमारे खिलाफ साजिशें कर रही हैं, इंशाअल्लाह उन सबको हम अपने इत्तेहाद, यकीन और जज्बा जहाद से इंशाअल्लाह हम इन सबको नाकाम बना देंगे। और हम अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना इस मुल्क की हिफाजत के लिए इकट्ठे और मजबूत होंगे। आपके हम जज्बात की तहसीन करते हैं कि आपने इस मौके पर इस पूरी कौम को बेदार किया है, इकट्ठा और तैयार किया है। यही जज्बा और यही शौक हमें इंशाअल्लाह कामयाबी से हसदार करेगा।